Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday news came the SBI Pharma exam is postponed. And whenever any news of postponement comes, it creates anxiety and worry among us, the candidates. And since last night, there are many comments. Sir, what will happen to SBI Junior Associate exam? This worry is genuine, but there is no answer that is available today. Because as for the official communication of SBI, they intended that this exam will happen in the month of June. But they have not given any date. And today is 19th of May. How things will pan out in coming days, it is very difficult to predict. Now, in SBI Pharma also, they have waited till last moment. And then they took the decision to postpone it. Meaning whereby State Bank of India might wait for things to settle and then decide when to hold the examination. So it is very difficult to say whether the exams will happen in June or not. It's very difficult. Nobody can predict. So let's see, can you predict? So what is your take of conduct of examination of SBI Junior Associate in which month? Post your thought in the comment column. And from this thought, we will try to figure out how candidates are feeling, what are their views, and in which direction this is moving. The purpose of these videos is to ease out. Because sometimes what happens is if some thought is striking my mind and it goes on hampering my study, so it is always better to vomit it out. This is called vomit it out concept in management. In management, we allow the person to speak out, to express, to tell his worries, tell her worries, and then the person can concentrate on work. So these type of videos, although it appears to be repetitive in nature, but these are very useful for the candidates. Because through this, candidate can share his or her worry with fellow colleagues. Through such type of videos, he can express it out. Through such videos, he becomes or she becomes relaxed. For a gainful preparation, relaxed environment is very necessary. But at the end of the day, my advice to each one of you is focus on study. Many people say, sir, ultimately you will say focus on study. Why you are making 3-minute, 4-minute video? This 3 or 4 minutes video is an investment on you. Because this 3 and 4 minutes time spent on this video will help you to become calm, will help you to become cool, and then you can concentrate on your study. Follow self-study plan. I am posting these videos on daily basis, and the people, those are using this self-study plan and using the tools suggested by me, are showing remarkable improvement. So be focused on study. The events will come and go, but our focus to crack the examination must always remain in center. And whenever some worry comes, take proper rest, be cool, and then again focus on study. Events are not in our hands, but study is in our hands. So we must do that we can do. We leave all other things to the fate and on God. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल एक खबर आई कि SBI फार्मा का एग्जाम पोस्टपोन हो गया.
बहुत लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए, सर अब SBI जूनियर एसोसिएट का क्या होगा, आपका क्या विचार है SBI जूनियर एसोसिएट के बारे में, क्या ये भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा। आपकी चिंता जायज़ है। हर उस कैंडिडेट के मन में शंका आ जाती है, हर उस कैंडिडेट के मन में चिंता आ जाती है जो तैयारी कर रहा है। पर क्या चिंता इसका हल है? नहीं है। क्या आज कोई ये बता सकता है कि जून में एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि हमें SBI के ऑफिशियल कम्युनिकेशन से चलना है। SBI का ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये कहता है कि वो जून में इस एग्ज़ाम को कराने का कोशिश करेंगे। अब ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये इन बातों पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में देश की स्थिति कैसे रहती है। लोगों के जीवन को दांव पे लगा के एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तभी होगा अगर उसके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। देखो, जीरो केसेस तो कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, जैसे अभी के हालात हैं। आने वाले 2-3 वर्षों में तो नहीं लग रहा कि किसी भी दिन हम ऐसा देखेंगे जब जीरो केस होगा। सिर्फ एक व्यू लिया जाएगा कि क्या इतने केसेस के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता। एक व्यू लिया जाएगा। क्या गवर्नमेंट ऐसा अरेंजमेंट कर सकती है कि एग्जामिनेशन सेंटर से ये वायरस ना फैले, इसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। तो ये आप चिंता छोड़ दीजिए कि कोई ऐसा डेट आ जाएगी जिसमें महामारी फैल जाएगी। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा। उसके लिए प्रायोरिटी है एग्ज़ाम कराना भी, और उसके लिए प्रायोरिटी है लोगों की हेल्थ भी। दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाकर ही इस पे फैसला होगा। और इसीलिए आप देखेंगे सभी ऑर्गेनाइजेशन आखिरी दिन तक इंतजार कर रहे हैं और फिर फैसला कर रहे हैं कि एग्ज़ाम करना है कि नहीं करना है। मीन्स प्रयास है एग्ज़ाम हो जाए, और जब लगता है अभी हालात नहीं है कंड्यूसिव तो वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? ये अपना विचार आप कमेंट कॉलम में डालिए। ये एग्ज़ाम जून में होगा कि जुलाई में होगा कि बाद में होगा, आपका क्या विचार है? एग्ज़ाम तो होना है, बट कौन से महीने में होना है ये आप इसमें डालिए। कई लोगों को लगता है ऐसी वीडियोस को बार बार बनाने से क्या फ़ायदा है। उनका अपना विचार ये हो सकता है, पर ऐसी वीडियोस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है वोमिट आउट। वोमिट आउट का मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही चिंताएं हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहे प्रश्न हैं, अगर हम उसको पब्लिक कर देते हैं, उसको दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख देते हैं, तो हम मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर अंतर्द्वंद पैदा करते हैं और हमें बार बार परेशान करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पे विचार कर लेना, ऐसे प्रश्नों पे 4-5 मिनट लगा लेना ज़्यादा अच्छा है देन हम इन प्रश्नों को अपने अंदर अंदर रख कर घुटते जाएं। तो मैनेजमेंट की एक थ्योरी है कि जब हम अपनी बात किसी को बता पाते हैं, जब हम अपनी बात किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, तो हम अपने को हल्का महसूस करते हैं और हमें लगता है कि जिस मुसीबत को हम झेल रहे हैं और लोग भी उसी मुसीबत में हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ और सब मिलके इसका मुकाबला हम कर लेंगे, और उससे मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए ये जो 4-5 मिनट की वीडियो होती है और जो फ्रीक्वेंटली कई बार डालनी भी पड़ती है, ये भी कैंडिडेट की तैयारी में मदद करने वाली है। कई नादान लोग होते हैं, उनको लगता है ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जिनको ऐसा लग रहा है उनको नहीं देखनी चाहिए ऐसी वीडियोस। पर अधिकांश लोगों को ये यूज़फुल होती है, क्योंकि कई लोग लिमिटेड नॉलेज की वजह से क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। उनको जीवन का अनुभव नहीं होता, उनको ये समझ नहीं आता कि कोई चीज़ अगर की जा रही है उसका उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, और वो इसी वजह से पिछड़ भी जाते हैं अपने जीवन के अंदर। तो यदि कुछ भी किया जा रहा है, मान लीजिए कोई किसी विषय पे कोई वीडियो बनाई जा रही है, तो वो आपके हित के लिए बनाई जा रही है, पर जिन्हें लग रहा है कि ये वीडियो नहीं होनी चाहिए उनको देखनी नहीं चाहिए।
पर दूसरे लोग ना देखें, दूसरे लोग फायदा ना उठाएं, ऐसी चेष्टा उनको नहीं करनी चाहिए। जिनके लिए ये फायदेमंद है उनको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है ना, दुनिया में सैकड़ों दवाइयाँ बनती है, तो हर दवाई तो आपने नहीं खानी है ना, आपको तो वही खानी है जो आपके लिए ज़रूरत की है। दुनिया में हजारों तरह के फल हैं, सारे तो आप नहीं खाते हैं। जो आप अफोर्ड कर पाते हैं, जो आपके लिए हितकारी हैं, वो खाते हैं। हजारों तरह के व्यंजन हैं, सारे तो नहीं आप खाते हैं। हजारों तरह की सब्जियां हैं, वो भी आप नहीं खाते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि कोई किसी पे कमेंट करे ये आपने वीडियो क्यों बना दी, ये सही नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं, वो जजमेंटल बन जाते हैं, वो अपने रोल को भूल जाते हैं। रोल आपका नहीं है कि किसको क्या करना है, रोल आपका ये है आपको क्या करना है। तो यदि एक व्यक्ति है, उसको अच्छा लग रहा है कि इस विषय पर वीडियो होनी चाहिए, वो बना रहा है, तो आपको देखनी है, आप उसको देखिए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे देखनी, तो मत देखिए। पर हजारों लोग जिनको इससे फ़ायदा होना है, उनको फ़ायदा हो जाने दीजिए। आपको फ़ायदा नहीं लेना, मत लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।